प्रोग्राम आपका स्वागत है। बहुत बहुत आज इम्पोर्टेंट क्लास है मेरे हिसाब से, और एक तरह का स्पेशली ये ग्रुप के लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्लास है। सो पे अटेंशन एंड hopefully this class will give you a lot of points in terms of understanding how you can progress better, कैसे आप अच्छा कर सकते हैं अपने करियर में, अपने लाइफ में कैसे आप अच्छे रिलेशनशिप्स रख सकते हैं, कैसे आप एक तरह से आराम से रह सकते हैं। तो आज का क्लास उसके बारे में है। इट्स अबाउट ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, मैंने दोनों मिक्स कर दिया है। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जब कोई भी आपको जॉब में लेता है या फिर कोई भी आपका फ्रेंड बनता है या इन लाइफ में इन जनरल, द नंबर वन क्वेश्चन दे आस्क देमसेल्फ इज कैन वी ट्रस्ट दिस गाय। क्या हम इस पे भरोसा कर सकते हैं, क्या हम इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये काम कर पाएगा, क्या हम इस पे भरोसा कर सकते हैं कि ये मेरा सीक्रेट रख पाएगा, क्या हम इस पे भरोसा कर सकते हैं कि ये अच्छे से मेरा साथ देगा। ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है एंड इस क्वेश्चन को हम बहुत ऑब्जेक्टिवली लेंगे लाइक लास्ट क्लास। सो टुडेस एजेंडा इज वेरी वेरी सिंपल। आज का क्वेश्चन होगा और उसके बाद हम ट्रस्ट का जो वैल्यू है वो देखेंगे, कितना वैल्यूएबल है, कैसे हम और ट्रस्टवर्दी बन सकते हैं, और कैसे हम ऑनेस्टी डेवलप कर सकते हैं, और ऑल्सो डिसऑनेस्ट लोग से हम कैसे डील करेंगे। ठीक है, उसके बाद समरी एज यूजुअल 2-3 लोगों को मैं बोलूंगा समरी देने के लिए एंड देन विल हैव अ क्वेश्चन। ओके, सो दैट्स टुडेज एजेंडा और दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। If someone has cheated you of, let's say, 10 lakh rupees, is just a number. 10 lakhs means 10 lakhs ऐसा पर्टिकुलर नहीं है, बट इज जस्ट कि someone किसी ने आपको चीट किया। तो इस केस में आर यू अ बिगर फूल या वो लोग है बड़े फूल। फूल मतलब बेवकूफ एक तरह से। ओके, सो द क्वेश्चन ये है कि किसी ने आपको चीट किया है, पैसों को लेकर या फिर कोई भी चीज को लेकर आपको चीट किया है, तो कौन इसमें बड़ा मूर्ख हुआ, आप या वो, और क्यों। ठीक है, एक बहुत ही जनरल क्वेश्चन है। सो लेट मी आस्क Shruti. I like to start with Shruti. Yes, I think both of them means we also and them also will be fools. We will be fool to trust uh, or to trust a guy with who will cheat us, and the other person will also be the fool to cheat us with this 10 lakh rupees. Okay, so it's a loss-loss scenario. But who is a bigger fool? Like if you have to say somebody is bigger than the other. Them. Them. Why? Yes, because we weren't fool to give them 10 lakh. Yeah, we can be also fool, but we will अभी 10 लाख 10 लाख की बात है तो हम कुछ सोच समझ कर ही कुछ भी negotiate करेंगे. We will trust them or we will know something. But if they cheat us, then that's not our mistake that we trusted them this much with 10 lakh rupees. So I Oh, guess yes, fool. whenever you have 10 lakh rupees, please let me know. Okay, you are a very positive person. Okay, but just so you understand, जो लोग cheat कर रहे हैं, they don't feel they are fool. They are feel they are very cunning. They are very smart. क्योंकि बहुत सारे हम scam देखते हैं जहाँ पे लोग को बेवकूफ बना के पैसे बनाते हैं. So they don't think they Exactly. are being fool. They think they are over smart. So, but it's a good point you bring it up. Okay, that's what Shruti says. What does Sonam says? Sumit, I think the other person is a bigger fool because he has cheated me of lakh rupees and he lost the opportunity to borrow 10 lakhs or maybe a crore from me. Okay. Wow. So you could have given a crore, but he just took 10 lakhs. Wonderful. We have such a good crowd here, you know, very positive people. I like it. All right. What does Tanmay say? I think Tanmay is gone. I think he got a little bit scared of the question, maybe. Let's ask Namita. What does Namita think? Namita, क्या लगता है आपको?
I think I am fool because because he is more smarter than me and intelligent than me. So he have cheated me, right? So I am fool. Oh wow! So if you cheat him, you are smart and intelligent, and he's fool. Wow. Yes, obviously. Oh, it's so obvious, you know. All right. That is a very interesting observation. And go on, have your next. Lakshmikant, what do you think? Okay, I think the person who cheated is a bigger fool, Mm-hmm. with the sense that he's being dishonest with the person whom the person who trusted him, he's being dishonest with him, and here the money is irrelevant, but the Mm-hmm. thing that he cheated on him is more important, Okay. and now he has lost all his respect, and I think and these ethics values like respect and that Mm-hmm. trusting is more than money, I guess. Got it. So Okay. he just So he. equated these two things, Okay. All and right. Wonderful. That's a valid point as well. See, we are just looking to know everybody's point of view. Okay, it's not like a right or wrong thing. Let me ask what Nitinji thinks about this. I think the person who's taking 10 lakh rupees from me in the future, he may not be borrowing me more money because आज वो 10 लाख रुपए लेके खुश हो रहा है, Mm-hmm. बाद में फिर कभी इसको मैं और 10 लोग को बोलूंगा कि भाई ये तो फ्रॉड आदमी है, इसको फिर बाद में 10 लाख छोड़ 1 लाख भी देने वाला कोई नहीं मिलेगा इसको. अच्छा. So आज he वो has. खुश हो जाएगा, अच्छा. फिर बाद में फ्यूचर उसका एकदम नील है Nil मेरे hai. हिसाब से. Okay. All right. Wonderful. Let me see what Devesh has to say. वेल ये क्वेश्चन पढ़ के मुझे ये पता चला कि इसमें पहले से एक प्री सपोजिशन है कि दोनों फूल है. Okay. या लाइक एक क्रॉस क्वेश्चन है, लाइक व्हाई इज इट कंसीडर्ड लाइक दोनों फूल क्यों है, लाइक व्हाई इज समवन अ स्मॉलर फूल एंड बिगर फूल, व्हाई नॉट someone a fool and someone who is not a fool? It's just a question कि हम अगर if we lost some money trusting somebody whom we shouldn't have trusted in the first place, so that's a mistake from our side. It means to say कि we shouldn't have trusted, we should have been smart in the first place to not give the money, assuming we gave it off, and assuming we gave it with the intention to get it back. We didn't give it an intention to just let it go. हमको पैसे वापस चाहिए, उधार दिया था किसी को, तो किसी ने वापस चीट करके नहीं दिया, तो फिर एक तरह से वो गलती हुई है, ऐसे अज्यूम करके हम बोल रहे हैं कि कौन है बड़ा फूल. तो मेरे हिसाब से लाइक जो आगे वाला पर्सन है जिसने चीट किया है वो ज्यादा बड़ा बेवकूफ है. अच्छा. क्योंकि उसने लाइक ट्रस्ट को मिसयूज किया है. Okay. तो फ्यूचर में उसे लाइक काफी प्रॉब्लम हो सकती है विथ रेस्पेक्ट टू ट्रस्ट. वो दूसरों को भी जल्दी से ट्रस्ट नहीं करेगा क्योंकि वो खुद भी सोचेगा कि जब वो खुद किया है तो दूसरे लोग भी करेंगे. सो ही विल फेस मोर हर्डल्स. More hurdles. Okay. All right. That's also a very valid point. I think we just missed out on Tanmay. Hey Tanmay, you are here? Yes, am I audible? Yes, yes. So I would say that I was the bigger fool because I trusted someone who is not so good at character. So it was my mistake on judging other person's character. And also he will be a small bit of a fool because now he has damaged his own reputation in front of the public that he is someone who you can't trust or he will scam you. So he may be a bit of fool, but for now he is smart guy. Yes, smart guy. Okay, all right. I don't see Tulika here. She's not here. She has a meeting going on. Okay, all right. No problem. So we heard a different opinion from different people. From my point of view, I would also say कि सामने वाला जो है वो ज्यादा बड़ा बेवकूफ है या उसने ज्यादा बड़ा रिस्क लिया है, क्योंकि
नंबर वन थिंग, वो सिर्फ 10 लाख रुपए नहीं दिया है, वो 10 लाख रुपए के साथ साथ बहुत सारी बददुआएं, बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस, बहुत सारी गालियां भी ले रहा है. इट्स नॉट जस्ट द मनी दैट द पर्सन टुक फ्रॉम अस. वो हमारे से बहुत सारे, वो द पर्सन डजंट अंडरस्टैंड लॉ ऑफ कर्म प्रॉपरली, बिकॉज शॉर्ट टर्म के लिए तो बहुत इंजॉयमेंट है, बहुत होशियारी की बात है कि मैंने किसी को बेवकूफ बना दिया. अगर मैंने ऐसे 100 लोग को बेवकूफ बना दिया तो नाउ आई हैव 10 crores और मुझे किसी को बेवकूफ बनाने की जरूरत ही नहीं है. Be happy. That's what all the scamsters do. ऐसे ही सब लोग एक दूसरे को उल्लू बना के वो पैसे लेते हैं, जो स्कैमस्टर्स होते हैं या फिर जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं वो लोग. तो उनका जो विजन है वो बस इतना है कि कैसे मेरे पास पैसे आ जाए और कैसे मैं उसको फिर आराम से बैठ के एंजॉय करूं. बट इन द लॉन्गर कॉन्टेक्स्ट आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी बिग लॉस, बिकॉज हम हो सकता है उनको फॉलो अप करके नहीं पकड़ पाए, बट कर्म किसी को छोड़ता नहीं है. सो सूनर और लेटर उनके साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा, अभी नहीं तो कभी, और कभी नहीं तो कभी भी. बट वंस यू पुट इट इन एक्शन यू कांट टेक इट बैक. तो कभी ना कभी उसके साथ भी ऐसा होगा. एंड सेकेंड थिंग इज, वी विद ट्रस्टिंग समबडी, आई थिंक वी हैव टू बी लिटिल स्मार्ट इन ट्रस्टिंग. ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली कोई बोल रहा है तो सबको दे देना है. बट स्टिल, if you trust somebody and somebody doesn't, somebody breaks the trust, it is not 100% our problem like that. Okay, and we can just think कि we don't understand the big picture, so हो सकता है शायद हमने कभी भी ऐसा किया हो या हमें उसका फल मिल रहा हो. We don't know all such complex answers, but the best thing to do is to trust smartly. And then once you trust, and if somebody breaks, then you think it ki, okay, like, oh, it is a mistake on my part, and next time I should be careful with that. Doesn't mean I stop trusting everybody, it just means I need to be more careful. Okay, that is my take on this question. So now let's go ahead with the concept of trust and क्यों इतना important है, क्यों बहुत ही crucial concept है आज का. I think it's much beyond skills, much beyond communication skills also. So let's see what is the value of trust. तो trust हम कैसे, trust का मतलब क्या है, कोई reliable है, हम उस पर भरोसा कर सकते हैं कि ठीक है वो हमारे मतलब वो let's say हमारे secrets रखेगा, या फिर let's say वो हमारे साथ अच्छे से रहेगा, या वो सच बोल रहा है, या वो let's say अगर धोनी है और लास्ट ओवर है तो ऑलमोस्ट भरोसा रहता है कि वो 6 मार के या 4 मार के जिता देगा. तो एक तरह का भरोसा रहता है कि वो पर्सन जो है वो जो भी कर रहा है वो सही कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, टू लर्न फ्रॉम एनीबडी द नंबर वन थिंग इज यू नीड टू ट्रस्ट देम. लाइक अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ और अगर आपको मेरे में जो बोल रहा हूँ उस पर ट्रस्ट नहीं है, you will not get anything. Same way with the teachers, same way in the job, same way in relationship. अगर ट्रस्ट ही नहीं है तो आपको भरोसा ही नहीं रहेगा, फिर वो बात का कोई मीनिंग नहीं रहेगा. Okay, so the value of trust is very very much. Trust, the number one thing is somebody who is reliable. Okay, and second thing is, because of trust we have confidence in them. Like हमें भरोसा रहता है कि ठीक है, मतलब कुछ ऐसे नया कोई वेंचर कर रहा है, नया कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, नया कुछ भी कर रहे हैं, तो वी हैव कॉन्फिडेंस कि ये कर लेगा, कुछ ना कुछ करके हैंडल कर लेगा. बहुत बार हम देखते हैं चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स में जो टीम होती है वो उन्हीं लोगों को चूज करती है जो जिन पे वो ट्रस्ट करती है कि ये काम कर लेगा. इन पे नहीं चूज करती है जो बहुत ज्यादा स्किल्ड है या टैलेंटेड है, क्योंकि बहुत बार हो सकता है वो इतना टैलेंटेड है बट कमिटेड नहीं है, तो फिर उस पर ट्रस्ट करना मुश्किल होता है. सो वी हैव कॉन्फिडेंस इन द पीपल. एंड थर्ड इज वी फील सेफ फिजिकली, इमोशनली. हमें एक तरह का सेफ जोन लगता है कि ये मुझे हार्म नहीं करेगा, ये मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देगा, तो उस लोगों को हम ज्यादा ट्रस्ट करते हैं. और सारे रिलेशनशिप का बेस ट्रस्ट है. जहाँ पे भरोसा है वहीं पे रिलेशनशिप कोई भी रह सकता है. अगर मुझे भरोसा है कि तुम अच्छे नहीं हो तो कुछ भी कर लो अच्छे नहीं दिखोगे, और अगर मुझे भरोसा है कि तुम अच्छे हो तो कुछ भी कर लो मुझे अच्छा ही दिखेगी. Okay, so it's very very important to actually understand this concept. And the number, मैं पहले बताता हूँ कैसे ट्रस्ट बिल्ड करना है, फिर विल मूव टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स. So let's say we know कि trust बहुत important है, and we are all like good people, we are all pretty honest people. हम ज्यादा कुछ complications के साथ नहीं है, but still there will be few things which you can take away from this. And the main points are this: number one, tell the truth.
whenever possible सच बोलो. अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, नहीं आता है, ओके. हाँ मुझे आता है बट बाद में करूंगा, इस तरह से घुमाने फिराने से अच्छा है बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, नहीं आता है. एंड आई वॉज वेरी वेरी सरप्राइज, बट जब मैं यहाँ पे कंपनी में अपने स्विच करा तो मुझे जो टॉप मैनेजमेंट से एडवाइस यही मिली थी कि सुमित, इफ यू डोंट नो समथिंग just say you don't know. It's not compulsory that you have to know everything. Okay, so I was like very surprised कि कोई ऐसे बोलेगा. एंड वो बोलते हैं कि स्पेशली जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग हैं उन लोग को ये कॉन्सेप्ट हमें बहुत समझाना पड़ता है कि इट्स ऑल राइट नॉट टू हैव द आंसर, इट्स ऑल राइट नॉट टू नो एवरीथिंग, इट्स ऑल राइट टेक्निकली तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो द मेन की इज यू इन्फॉर्म अस एंड यू टेल अस कि हमें नहीं आता है. Okay, so number one thing is tell the truth, try to say the truth most of the cases, almost all of the cases. So try to speak the truth. And second thing is admit when you don't know something. बहुत बार हम देखते हैं किसी को नहीं आता है तो भी झूठे मूठे बोल देते हैं कि नहीं मुझे आता है, मैं कर लूंगा. तो एक तरह से क्या होता है, फिर ट्रस्ट चले जाता है. आपने कुछ बोला आपको आता है बट रियलिटी में नहीं आता है, नाउ यू हैव लॉस्ट ट्रस्ट. सेम वे आप अपने आप को भी बोल सकते हो कि मुझे तो ये सब्जेक्ट आता है बट इन रियलिटी में नहीं आता है. सो नाउ यू स्टार्ट लूजिंग ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ कि मुझे तो मतलब लगता था आता है बट एक्चुअली में आता नहीं. ओके, एंड एडमिट व्हेन यू आर रॉन्ग. सो व्हेनेवर यू गो रॉन्ग, if rather than defending, if you did something wrong, it's okay, you just can say ठीक है गलती हो गई. Okay, and we'll go in the future why these things are not happening in our society and how these things are the crucial things that we need to understand. And the most important thing is if you say you'll do it, just do it, that's it, as simple as that. अगर कुछ बोला है कि मैं कल शाम 5 बजे आऊंगा, लेट्स से आपके घर पे, तो 5 बजे पहुंच जाओ. लेट्स से आप बोल रहे हो कि I'm going to study today, then study. Okay, so that way if you do, people will start trusting you. That's how you will build trust. Okay, and अगर आपको करना है आज, लेट्स से आपको पढ़ाई करनी है और खेलना है, लेकिन आपने बोला है अपने आप को या अपने पेरेंट्स को या अपने किसी फ्रेंड्स को भी कि मैं पढ़ूंगा, then you follow up with that. You don't change your mind and you say okay wait a minute, मैं बोला तो सही पढ़ूंगा बट अभी नहीं, अभी मैं खेलूंगा. बहुत कॉमन है, होता है. It's just a journey. Okay, so whenever possible you do what you're supposed to do, and sometimes it's better to give an idea of the thought process. So ये सब क्या है, पॉइंटर्स है कि कैसे हम ट्रस्ट बिल्ड करेंगे. तो सपोज अगर आपकी कोई फ्रेंड है, उसने कुछ ऐसा एक्शन कर लिया जो उसको नहीं करना चाहिए था आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका ट्रस्ट चला जाएगा. बट इफ वो पर्सन आपको बताएगा कि क्यों उसने ऐसे किया, क्या हुआ था, उसका रीजन क्या है, तो फिर you don't lose the trust. You just feel okay, he did something or she did something, but you don't lose the trust. Okay, the concept is to retain the trust. सब कोई हम पे भरोसा करते हैं एक लेवल पे, बट कितने लेवल पे कितना ज्यादा भरोसा करते हैं, उसको कैसे बढ़ाना है, इसके बारे में हम देख रहे हैं. ओके, एंड नंबर वन, एंड ऑल्सो वन मोर थिंग इज यू एक्सटेंड ट्रस्ट टू अदर्स. इफ यू डोंट ट्रस्ट एनीबडी, कोई भी आपको ट्रस्ट नहीं करेगा. अगर आप किसी पे भरोसा ही नहीं कर सकते हो तो कहीं ना कहीं बाकी लोग भी आप पे भरोसा नहीं करेंगे. और ये सब चीजें कोई एक्सप्लिसिटली बोलता नहीं है, मुंह से कोई बोलता नहीं है, बट दे कैन फील इट. People also can feel it, you also can feel it. Okay, and include others means कहीं पे suppose कुछ एक include others is very different concept. It means कि suppose कुछ एक secret रखना है, तो rather than one person having secret, you can have 3-4 people secret, and then other people will say okay ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसके पास ही secret है, बाकी सब लोग भी है, so they feel more assured. Okay, so these are some very simple ways how you can build your trust or improve your trust. Okay, and this is actually one of the biggest skill you should acquire. It's not that you maybe acquire, you could acquire. आपको कुछ चीजें अच्छी आती है, नहीं आती है, कोई बात नहीं है. कम्युनिकेशन में अच्छे नहीं है, कोई बात नहीं है. वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे लीडर है जो बोल ही नहीं सकते हैं, जो मतलब लिटरली लाइक जिनको मतलब लैंग्वेज स्किल्स अच्छे नहीं है, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं है, बट ऐसे वर्ल्ड में बहुत सारे ग्रेट लीडर्स के एग्जांपल है. Okay, so it's not necessary to be expert in everything, but especially when it comes to trust. अगर आप ट्रस्टवर्दी बन पाते हो, अगर आप ज्यादा लोग आपको ट्रस्ट
हैं तो आप देखोगे कि वो वन ऑफ योर बिगेस्ट एसेट्स हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि सपोज क्लास में किसी को कुछ करना है तो बोलेंगे कौन कर सकता है, यू नो व्हाट, दिस पर्सन कैन डू इट बिकॉज ही और शी, आई ट्रस्ट दैट पर्सन कि वो कर पाएंगे, वो कमिटेड है, ऐसा। ठीक है, जॉब में ले लो, आप करियर में ले लो, ऑलमोस्ट फैमिली में ले लो, कहीं पे भी ले लो, इफ यू बिकम मोर ट्रस्टवर्दी, if people can say कि ठीक है कुछ नहीं तो ये तो देख लेगा, ये तो कर लेगा, that's when you start getting more and more and more what I say, start getting more and more progress in your life. You can start seeing more and more progress in your life. Okay, so this is actually one of the biggest skills everybody should have here. इसलिए मैंने इतने सारे पॉइंट्स दिए स्टार्टिंग में कि क्या क्या चीजें हैं जिससे आप ट्रस्ट बिल्डअप कर सकते हो, जितने भी ट्रस्टवर्दी हो उससे भी और बन सकते हो। And this is one of the quickest way to develop trust. What is one of the quickest ways? To be honest. This is a very, very difficult concept to implement at a practical level. We will see why. But this is actually the core of how आप जल्दी नहीं, but कैसे आप ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो अपने आप में और दूसरों से। तो एक सिंपल वे है, सपोज बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ मीन्स अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको कुछ चीज सता रही है, अगर आपको कुछ भी ऐसा है जो आपको लग रहा है कि बॉदर कर रहा है, फर्स्ट इज टू एक्नॉलेज इट। इफ यू जस्ट डोंट एक्नॉलेज इट, इफ यू जस्ट डिनाई इट कंटिन्यूसली, आप उसको डिनाई करोगे, then somewhere you will lose connection with yourself. Okay, so first thing is to acknowledge it. With that, once you acknowledge कि मेरे में ये weakness है, मेरे को ये नहीं आता है, या मुझे ये सीखना है, मुझे ये समझना है, once you acknowledge, you will see how much improved person you will be. क्योंकि अब क्या होगा, आपके साथ कनेक्शन है, आपको पता है कि मुझे नहीं आता है, बस क्या है, मुझे सीखना है। ठीक है, मैंने कुछ गलती कर दिया तो अब मुझे नहीं दोहराना है, कैसे नहीं दोहराना है वो सीखना है। अपने एग्जाम फेल हो गया तो इतना कुछ डरने की बात नहीं है, यू जस्ट नीड टू से ओके मैंने बराबर से पढ़ा नहीं, शायद मैं ज्यादा डर गया था, तो अब मुझे कैसे वो ओवरकम करना है वो सीखना है। ओके, so if you're not honest with yourself, no, there is no way people will trust you, there's no way you can build the trust in yourself. Okay, so number one thing is be honest with yourself. Another thing is be honest with others also. So अगर कोई आपको ओपिनियन पूछे तो try to give honest opinion. हो सकता है आपका ओपिनियन अलग हो सकता है आपका थिंकिंग अलग हो, नॉट अ प्रॉब्लम, यू जस्ट गिव योर ऑनेस्ट ओपिनियन कि मुझे ऐसे लगता है, इट्स ओके इफ वो सही है नहीं है जैसे भी है। एंड ऑल्सो इफ आप किसी को कमिटमेंट दे रहे हो कुछ भी, मैं ये करूँ वो करूंगा, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, यू ट्राई टू फॉलो इट अप। इफ यू डोंट फॉलो इट अप then what happens is people will not trust you, and this is what we see कि बहुत बार जब people trust नहीं करते हैं तब ना रिलेशनशिप स्ट्रांग होते हैं, ना उनका करियर स्ट्रांग होता है, ना उनका फैमिली में एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग स्ट्रांग रहता है, क्योंकि दैट पर्सन इज नॉट ट्रस्टवर्दी। इस पे भरोसा ही नहीं है, उस पे जो ऑनेस्टी नहीं है, उसकी कौन सी बात पे भरोसा करोगे, कौन सी बात पे भरोसा नहीं करोगे। ठीक है, so there is one simple way, not at all complex, very very simple ways how to develop your honesty. Everybody is good here, I'm not saying we are bad, I'm just saying we all have different level of honesty, how we all can keep improving by doing small things. One is don't lie unnecessarily, जहाँ पे जरूरत नहीं है, जहाँ पे उसका कुछ मतलब भी नहीं है, don't lie, because if you, many people I have seen who are in a habit of lying, उनके मुंह से बिना बात ही झूठ ही निकलता है, वो कुछ भी हो, वो एज एज लाइक अ हैबिट हो गया है वो, कि अगर वो कहीं पे है तो बोलेंगे मैं यहाँ नहीं मैं वहां हूँ, अगर कुछ भी है तो बोलेंगे ये नहीं वो है, मीन्स एक तरह का उनके अंदर डर बैठ चुका है, एंड वी विल सी व्हाई वो होता है। बट मेनी पीपल लाई अननेसेसरली, है तो फ्रेंड्स के यहाँ पे बट बोलेंगे पढ़ रहा हूँ, है तो मूवीज में बट बोलेंगे मैं तो एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, राइट? So many things, so many different ways why people lie. So whenever possible don't lie unnecessarily। अगर आप झूठ बोलोगे तो अच्छा लगेगा, छोटी छोटी बात पे भी झूठ बोल रहा है तो फिर वो कभी ना कभी तो पकड़े जाओगे, तो ऐसे फिर लगेगा कि कौन सी बात सच थी कौन सी झूठ थी, right? So don't lie. And second thing is remember your past meaning, see when somebody
broke your trust, how bad you feel, right? कोई आपको ट्रस्ट ब्रोक कर दिया, कोई आपको चीट किया, कोई आपको लेट्स से जैसे धोखा दिया, या फिर फ्रेंड्स ने आपको, आपके सामने तो अच्छे हैं, पीठ पीछे वो बहुत बुराई कर रहे हैं, इस तरह के अगर होते हैं तो हाउ बैड यू फील, राइट? वी डोंट वांट अदर पीपल टू feel like that about us. Okay, so that's why remember your past and try to avoid doing all of such things. And also one more thing is, if you are honest to yourself, you can be honest with others. If you're not honest with yourself, वो बाहर आएगा ही नहीं, क्योंकि आप अंदर से honest नहीं हो तो बाहर से भी honesty नहीं आएगी. Okay, so let's see, this was about trust and honesty. Let's see little bit about dishonesty, because many times we feel we are very honest, but in reality it's a very different scenario. And एक shocking realization मुझे हुआ जब मैं actually US में आया. And then when I found कि actually I was so dishonest. I was thinking I'm very honest person, very trustworthy, and सबको ये बोलता था बहुत honest है, बहुत trustworthy है. But when I saw things here, when I realized कि job में कैसे है, लोग कैसे हैं, I realized I was actually very dishonest in many ways. बहुत बार मुझे नहीं आता तो भी बोल देता था आता है. बहुत बार ऐसे होता था कि मैं थक गया हूँ लेकिन बोलता था कुछ हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, राइट? इट्स जस्ट एक्सक्यूज, जिसको इट्स ओके एटीट्यूड से आ गया था कि ठीक है, इट्स ओके, आज क्या हुआ. So it's very important, because when I realized this, I realized why Indians are supposed to be, we cannot generalize like that, but in general we have seen that in India में बहुत लोग ऐसे झूठ आराम से बोल देते हैं. उनको इतना कुछ बड़ा डील नहीं लगता है, छोटी छोटी बात पे भी झूठ बोल देते हैं, झूठ बोल के काम कर लेते हैं. एक तरह का पैटर्न बन चुका है, एक तरह का तौर तरीका बन चुका है, which is very shocking for me. So when I think about it कि कैसे dishonest बन गए हम, so number one thing is because of a punishing society. So if you see this, बहुत बार क्या होता है कि हमें तो लेट्स से मूवी देखना है, राइट? बट घर से फोर्स होता है कि पढ़ो, अभी तो तुम्हें पढ़ना है, लेट्स से. तो अब ऐसे केस में क्या करेंगे हम? जो लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे वो बोलेंगे कि यार मुझे तो मूवी देखना है, और वो मूवी देखेंगे और घर पे बोल देंगे कि पढ़ रहा हूँ. इसमें क्या करेंगे वो? दे आर लाइक बीइंग डिसऑनेस्ट, बट दे डोंट हैव अ चॉइस. क्योंकि अगर वो कुछ बोल रहे हैं सही में, तो उनके मतलब घर वाले समझ नहीं पा रहे हैं कि उसका मन नहीं है अभी पढ़ने का. ओके, सो वी सी कहीं ना कहीं लोग हम देखते हैं कि दे फील इट्स बेटर टू लाई देन टू सीक परमिशन. And it happens many times, very practically it happens कि many people say it's okay to lie in small things than to ask for permission. मैं अगर उनको बोलूंगी कि मुझे 6 घंटे खेलना है, कभी नहीं मिलेगा, इससे अच्छा मैं बोलती ही नहीं हूँ या मैं बोलता ही नहीं हूँ. बहुत कॉमन है, टोटली ऐसा नहीं है कि रेयर occurrence है, बहुत कॉमन है. एंड द थिंग इज, ये एक तरह का एटीट्यूड बन जाता है धीरे धीरे, जब समझ ही नहीं आता है कि अच्छा ऐसे नहीं करना है, समझ ही नहीं आता है कि उसको कहाँ रोकना है. ओके, so many people I see is because they feel it's better to lie than to seek permission. And another thing is, जो लोग स्ट्रगल करते रहते हैं, जिनको सपोज इंग्लिश अच्छी नहीं आती है, या फिर कुछ भी एक हो, टेक्निकली अच्छे नहीं है, या फिर लेट्स से किसी भी चीज में वो अच्छे नहीं है, तो हम देखते हैं कि सोसाइटी थोड़ा उनका मजाक उड़ाते हैं. जब सोसाइटी मजाक उड़ाने लगता है तो पर्सन को कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता है, और जब अच्छा नहीं लगता है तो ही और शी देन आइदर कर्स देमसेल्फ कि मैं क्यों ऐसा हूँ, या तो फिर वो डिस्टेंस हो जाएंगे सोसाइटी से, या फिर एक तरह से वो झूठ बोलने लग जाएंगे कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे मार्क्स कम आए, तो मैं झूठ बोल दूंगा कि मेरे ही नहीं सबके ही कम आए, तो सिर्फ मैं ही नहीं, सबके ही कम आए हैं, तो आई एम नॉट द एक्सेप्शन. ऐसा नहीं है कि मैं अकेला ही बुरा हूँ. यू सी, what happens is when you don't accept the person as the person is, जैसे वो है वैसे एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो वो पर्सन के पास चॉइस ही नहीं है. उसको बाय डिफॉल्ट अपने आप को अच्छा बताने के लिए उसको झूठ बोलना पड़ेगा, उसको जो है फैक्ट वो नहीं बोल के कुछ और फैक्ट बोलना पड़ेगा. ओके, दिस इज हाउ डिसऑनेस्टी क्रीप्स इन. इट्स नॉट दैट कि हम लोग को झूठ ही बोलना है, हम लोग को झूठा ही रहना है, या फिर हम लोग को ऐसे करना है जो सही नहीं है, बट
because of the society pressure, slowly we start saying lies in small things. Okay, and then these are the outside things. Okay, how society can be very punishing, especially very punishing in terms of स्पीकिंग ऑनेस्टली. लेट्स से बहुत लोगों के पास बोलेंगे कि तुम ये नहीं तुम ये बोलो, बाय डिफॉल्ट ये नहीं वो बोलो, जो है वो बात नहीं दूसरी बात बोलो बाय डिफॉल्ट. क्यों? क्योंकि पूरी सोसाइटी ऐसे कर रही है. So if you want to be the truthful person, you better suffer. You better like then there's no escape for you. Okay, इस तरह के थॉट्स जब जैसे जैसे हम ग्रो करेंगे आपको बहुत बहुत बार लाइफ में से सिनेरियोस आएंगे. So these are outside factors. So society and the groups and the friends, everybody is doing it, so it's okay to do it. ये बाहर के factors है जहाँ से dishonesty आ जाती है कहीं ना कहीं से. एक और है ह्यूमन बीइंग जो अंदर से कर रहा है, वो जो बाहर से कोई प्रेशर नहीं है, बट वो बोलता है कि करता कुछ और है, बोलता है कि फिर करता कुछ और है, देन द पर्सन लूज द ट्रस्ट. इसमें बाहर का ज्यादा इफेक्ट नहीं है, इसमें ह्यूमन बीइंग वो खुद से ही नहीं कर रहा है, कोई और कुछ बोलता है कुछ और है और करता कुछ और है, सो पीपल स्टार्ट लूजिंग द ट्रस्ट. One more thing is lying. Lying is very simple way. Again, it's not always because of the pressure. Sometimes it can also be as a habit. Okay, and then cheating. If you cheat somebody of something, then like I said, the person may not find out. You can get away with it, but कभी ना कभी कहीं ना कहीं वो बैक आएगा आपके पास. तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई और आपके साथ चीट कर सकता है. Okay, and one more way of being dishonest, withholding information, very critical. तो हम क्या करते हैं कि बहुत बार ये लगता ही नहीं है कि एक डिसऑनेस्ट है, बट वी विदहोल्ड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. कि लेट्स से कोई आपको पूछ रहा है कि मुझे फिजिक्स पढ़ने के लिए बुक्स बताओ, कोई सजेस्ट करो बेस्ट बुक्स. तो हमको 5 बुक पता है और पता है कि 4th और 5th बुक बहुत अच्छे हैं जो लोगों को पता नहीं है, सिर्फ हमें पता है. लेकिन हम क्या करेंगे, लेट्स से अगर पहले 3 के बुक के नाम दे दिए और 4th 5th नहीं बोला, तो वी आर नॉट लाइंग टू देम, बट वी आर विदहोल्डिंग इंफॉर्मेशन कि पूरा इंफॉर्मेशन उनको नहीं दिया है. दैट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ डिसऑनेस्टी. ओके, वन मोर फॉर्म इज एग्जैजरेशन. है 20% उसको 80% बना के बता दिया, किया इतना काम लेकिन इतना बड़ा चढ़ा के बोल दिया. ये भी एक तरह का डिसऑनेस्टी है. और मैं एक्चुअली में एग्जांपल्स देखा हूँ ऐसे लोगों के कि जब वो लोग इतना बड़ा चढ़ा के इतना डिटेल इतनी सी बात को इतना करके बोलते हैं, देन वी डोंट गेट इट कि उनको कितना ट्रस्ट करना चाहिए. कभी सही में किया तो भी पता नहीं चलता है कि एक्चुअली में इतना किया है क्या. सो दीज आर ऑल स्मॉल थिंग्स which we can't categorize outside. कि हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि आई एम डिसऑनेस्ट, I'm very, हमको ऐसे लगेगा I'm very honest, but in reality if we are doing any of these things, we have some degree of dishonesty which we should try to get rid of. Okay, it's not कि एक दिन में हो जाएगा, but we should try to not do this. The more and more you do this, the more and more change you will see in other people. बाकी लोग आपके साथ एक रिएक्ट करेंगे, एक तरह से आपको ट्रस्ट करने लगेंगे कि मैन ये अगर कुछ बोल रहा है तो it is he is being truthful. He can be wrong but he is being truthful. Okay, एक सिंपल एग्जांपल था, मुझे स्टोरी पूरी तरह से याद नहीं है, बट जब महात्मा गांधी थे और बच्चों के साथ खेल रहे थे, छोटे बच्चे थे तभी, तो एक स्टोरी है बहुत सिंपल सी कि उन्होंने और बच्चे कहीं पे मस्ती करने गए और मोतियां तोड़ दी और फिर सब वहां पे पुजारी वगैरह आ गए थे तो सब भाग गए वहां से. तो पुजारी ने सबको बुला, एक एक बच्चे को पूछा कि कहाँ है, किसने तोड़ा मोती. सब बोले हमें तो पता नहीं है, हमें तो पता नहीं है. वाई? अगर सच बोलते तो बहुत पिटाई होती, और अगर सच बोलते तो हो सकता है उनके घर से भी बहुत पिटाई होती. वी डोंट नो क्या कॉन्सिक्वेंस होते. हो सकता है उनको बहुत मतलब जैसे एक एग्जांपल है, स्कूल से रस्टिकेट कर देते, इस तरह का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो वो डर की वजह से उन्होंने सच नहीं बोला बच्चों ने, राइट. सो देयर इज अ फियर, लाइक आई एम सेइंग, सोसाइटी फियर, पीयर प्रेशर कि किसी को सच बोलना है तो भी बाकी सब तो ने तो डिसाइड किया थी झूठ बोलेंगे, तो तुम कैसे सच बोल सकते हो, राइट. हाउ कैन यू ब्रेक द लॉ, हाउ कैन यू ब्रेक द कोड. सो वो सब प्रेशर भी था. बट उनमें से जो महात्मा गांधी है, उन्होंने जब उनको पूछा तो वो बोल दिया हमने तोड़ी. दैट्स इट, एंड ऑफ द स्टोरी. बाकी सब बच्चे एकदम शॉक कि हमारा प्लान था, हमने सबने सोचा था ये बोलेंगे बट ये उल्टा बोला.
तो फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है, गुस्सा आता है बहुत कि इसने ऐसे क्यों किया, क्यों इसने हमारी बात नहीं मानी, ही इज लाइक बीइंग एन आउटसाइडर, हमारे साथ नहीं, हमारे अगेंस्ट है वो। बट कहीं ना कहीं अंदर उन सब लोगों को बहुत एक हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट आ जाता है इस पर्सन पे कि चाहे कुछ भी हो जाए ये आदमी झूठ नहीं बोलेगा। सो उस टाइम पे गुस्सा टेम्पररी है, रिएक्शन टेम्पररी है, बट लॉन्ग टर्म तक उनको ऐसा लगेगा कि अगर मुझे कुछ किसी को बोलना है, कुछ सीक्रेट रखना है, तो इस बंदे को बोलना है कि ये सीक्रेट नहीं आउट करेगा, अगर इसने बोल दिया नहीं करेगा तो नहीं करेगा। अगर कुछ सच है, मुझे कुछ सच जानना है, मैं 4 लोगों की जगह मैं उसको जाके पूछूंगा कि क्या है, तुम बोलो, क्योंकि अगर तुम बोल रहे हो तो आई विल नो कि आप सच बोल रहे हो। ओके, सो दिस इज अ काइंड ऑफ ओवरव्यू, एक तरह का ओवरव्यू दिया है मैंने कि डिसऑनेस्टी पे और ऑनेस्टी पे भी, कि कैसे वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट कर सकता है। बट एक बहुत क्रूशियल क्वेश्चन है, व्हाट टू डू विद डिसऑनेस्ट पीपल, बिकॉज this is scenario I have faced lot of times. I'm pretty sure every one of you must have faced a lot of times कि ठीक है हम तो अच्छे रहेंगे, आप बोल रहे हो तो ठीक है, हम तो वैसे भी ज्यादा झूठ बोलते नहीं है, वैसे भी हम काफी अच्छे हैं, वैसे भी मैं अननेसेसरी के कुछ कॉम्प्लिकेशंस करती नहीं हूँ। बट बहुत लोग मेरे साथ बहुत चीटिंग करते हैं, बहुत लोग मेरे साथ ही मुझे उल्लू बनाते हैं। मैं इतनी सीधी हूँ कि लोग आते हैं और फिर मुझे कुछ भी बोल देते हैं, मैं उनकी बातों में आ जाती हूँ और उल्लू बन जाती हूँ। तो उनके साथ कैसे डील करना है, राइट? वेरी वेरी क्रूशियल क्वेश्चन। तो द पॉइंट इज एवरी वंस इन अ वाइल, कभी ना कभी कोई भी पॉइंट पे वी विल हैव मीट सच पीपल, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, हमें ऐसे लोग मिलेंगे ही। और ऐसा नहीं है कि एक ऐसे फॉर्म में मिलेंगे कि वो देखते पता चल जाएगा डिसऑनेस्ट पीपल है। द पर्सन विल बी वेरी ट्रस्टवर्दी, पर्सन विल बी वेरी गुड, फॉर सम रीजन ही और शी विल डिसाइड टू बी डिसऑनेस्ट विद यू और बी लाई टू यू, छोटी कुछ भी कर दिया होगा, राइट? तो every once in a while we meet such person. So in such scenario, first thing is to understand the context. Many people don't understand the context. What I mean by understand the context is this. ठीक है, किसी ने आपको झूठ बोला है, राइट? आपके फ्रेंड ने बोला कि वो तो पढ़ नहीं रही थी लेकिन वो तो पढ़ रही थी, या कुछ भी बोल दिया हो, ए बोला बट बी कर रही है। फर्स्ट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, डोंट जंप टू कंक्लूजन डायरेक्टली कि ये जो पर्सन है वो बहुत झूठी है, वो बहुत मतलब ट्रस्ट, बिल्कुल ट्रस्ट के लायक नहीं है। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन फर्स्ट। इफ यू फाइंड इट आउट, यू जस्ट टॉक टू देम, डिस्कस कि क्या हुआ है, एंड देन यू थिंक इट इन लिटिल बिट बिगर पिक्चर कि क्या हो सकता है, क्यों किया होगा उसने या क्यों किया है, उससे ही पूछ लो आप। सो फर्स्ट थिंग इज यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट लिटिल बिट, okay? And then next one more approach is, let's say you cannot understand the context properly, let's say उस आदमी ने, जैसे 10 लाख का केस हुआ, इसमें कुछ समझने की बात ही नहीं है, उसका इंटेंशन ही था कि वो मुझसे पैसे लेना था, बस मुझे बेवकूफ बनाने के लिए उसने ट्रस्ट बिल्ड कर, बट उसका इंटेंशन था, वो तो चला गया। सो राइट, सो नाउ देयर इज नो कॉन्टेक्स्ट हियर, इस थिंक कि आपके पास कुछ था, वो उसने ब्रेक कर दिया ट्रस्ट, पैसे लेके चला गया, he cheated on you. In this scenario, it's better to just forgive and forget. Why? Because forgiveness is very important, because if you don't forgive, वो आपके मन में हमेशा बात रहती जाएगी, रही जाएगी, रही जाएगी, और बार बार आपको सताती जाएगी कि क्यों मैंने इस पे ट्रस्ट किया, क्यों मैंने ये किया, क्यों मैंने उस पे इतना भरोसा किया। तो better thing is to forgive, because we don't have to take all the हम क्या होता है, अगर हम दूसरों का नेगेटिविटी अपने अंदर रखते हैं, वो हमें इफेक्ट करने लगता है। ओके, सो फॉरगिवनेस इज नॉट कि वो मैं कुछ अच्छा उसके लिए कर रहा हूँ, मैं मेरे लिए अच्छा कर रहा हूँ, इसके लिए फॉरगिव करना इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग इज टू फॉरगेट। इट्स नॉट सो इजी, बट इट्स ऑल्सो नॉट सो डिफिकल्ट, टू बी ऑनेस्ट। सो फॉरगेट में क्या होता है, you just you obviously you don't forget totally, but it doesn't bother you anymore. You just know as a fact कि किसी ने मेरे से 10 लाख रुपए ले लिए, बट ऐसा नहीं रहेगा कि वो आपको जब भी ऐसे याद आएगा आपको बुरा लगेगा, या जब भी आपको याद आएगा ऐसे लगेगा मैंने क्यों किया, या फिर वो पर्सन ने क्या क्या किया, इस तरह के याद अगर नहीं है तो यू हैव इन रियलिटी फॉरगिवन एंड फॉरगेट। ओके, and third is habitual behavior. This is a very important thing. Many people, there is their habit, it can be their habit to break trust, can be their habit to lie,
जैसे मैं बोल रहा हूँ तरह तरह के लोग आते हैं, इज देयर हैबिचुअल बिहेवियर। ओके, सो एक बार कर दिया आपने, बात कर लिया, झूठ बोला आपसे, कोई बात नहीं, इट्स ओके, ह्यूमन नेचर है, कभी कभी हो जाती है गलतियां। 2 बार किया, यू टेल देम हे दिस इज नॉट ओके। 3-4 बार आपसे आपके साथ झूठ बोल दिया, नाउ यू ओनली स्टार्ट फीलिंग कि ये क्यों कर रहा है। और ज्यादा बार कर दिया, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड इट्स नॉट एट ऑल अबाउट यू, इट्स अबाउट दैट पर्सन, इट्स अबाउट उसका नेचर ही ऐसा है, उसका बिहेवियर ही ऐसा है। ओके, सो इफ यू अंडरस्टैंड दिस, देन यू वोंट फील कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों ऐसे कर रहा हूँ, क्यों वो मुझे बार बार ऐसे कर रहा है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कुछ लोग की आदत है, तो बाय हैबिट ही इज डूइंग लाइक दैट। ओके, and you remember the question that I asked, who is a bigger fool? If you are cheated in any case, understand you are not such a big fool as them, because it's human nature to trust. Okay, अगर कोई आपको बहुत इंटेलिजेंटली बेवकूफ बना दिया, राइट, बहुत स्मार्ट तरीके से आपको बेवकूफ बना दिया, तो शॉर्ट टर्म में यही दिखेगा कि वो पर्सन बहुत होशियार है क्योंकि उसने आपको बेवकूफ बना दिया, बट इन रियलिटी इन लॉन्ग टर्म दैट पर्सन इज अ बिगर फूल। जैसे मैंने आपको बोला, ही डजंट अंडरस्टैंड लॉ ऑफ कर्मा, ही डजंट अंडरस्टैंड कि when you cheat somebody, you actually like not just take away just like the money or something, you take away a lot of unnecessary negative things with that, और वो फिर उस आदमी को बहुत बुरी तरह इफेक्ट करता है। अभी नहीं दिखेगा, हो सकता है वो आदमी को ऐसे लगता ही नहीं है, वो आदमी तो एंजॉय कर रहा है, वो तो एकदम मस्ती में है कि भाई मेरे पास तो पैसे आ गए, वो उसके गए तो गए, मेरा क्या जा रहा है। अभी उसके पास वो अवेयरनेस नहीं है, बट लाइफ बहुत बड़ी है और बहुत सारे लाइफ्स भी है, सो वी नेवर नो कब क्या होता है। So if you are cheated in any case, don't think like you have been a fool. Like I said, be smarter. Try to just see which person how much you can trust. But it's not a, don't feel like you're fool. Many times हम देखते हैं relationships में, अगर कोई cheat करता है एक दूसरे को, तो सामने वाला person totally broken हो जाता है कि I was a fool, कि मैंने उसको इतना भरोसा किया लेकिन वो तो मेरे भरोसे के लायक ही नहीं है। Seen many times कि लोग काफी डिप्रेस एक तरह से, they are broken down, so don't be like that. Okay, it's not your fault. And then don't do tit for tat कि वो मेरे से झूठ बोल रहा है तो मैं उससे झूठ बोलूंगा, वो मेरे से ऐसे कर रहा है मैं वो ऐसे करूंगा। जैसे को तैसा अगर आप करने जाओगे, उसका तो पता नहीं कि उनको कितना रियलाइजेशन होगा, बट आपका नेचर जरूर बिगड़ जाएगा। ओके, so it's better strategy, don't go into tit for tat. Like I said, better way is to forgive and forget, or understand the context, or report. You can always complain, but don't become that person. Okay, and one last thing is, don't become judgmental of everybody. Just because एक किसी लड़की ने आपके साथ बहुत गेम खेला या धोखा दिया, doesn't mean सब लड़के ऐसे हैं। सेम एक लड़के ने अगर कुछ आपके साथ बहुत धोखा किया, ऐसे नहीं सब लड़के ऐसे हैं। मैं बहुत बार देखता था जब मैं अपने कॉलेज में था, अपने ऑफिस में था, तो भी लोग अपने पास्ट से बहुत जजमेंटल हो जाते हैं कि ओके, बिकॉज 2-3 लोगों ने मेरे साथ ऐसे किया है, पूरे लड़के ऐसे हैं, पूरे लड़के का ही ऐसा ही नेचर रहता है। If you do that, trust me, you're losing out on lot of things in life, because आप सबको उसी एंगल से देखोगे, उसी नजर से देखोगे, और उस केस में क्या होता है, हाई क्वालिटी जो पर्सन है वो आपके लाइफ में नहीं आएंगे, बिकॉज द हाई क्वालिटी पीपल, दे विल ऑलवेज ट्राई टू गो विद हाई क्वालिटी पीपल, क्योंकि उनको फिर लो क्वालिटी पीपल जो एनर्जी है वो मैच नहीं होता है। जब एनर्जी मैच नहीं होता है तो उनको मजा नहीं आएगा। वैसे आपको, जैसे हम देखते हैं कि लो एनर्जी वाले लोग के साथ मजा नहीं आता है ज्यादा हाई एनर्जी वाले लोगों को। तो फिर अगर आप बहुत ऐसे नेगेटिव वाइब्स के साथ रहेंगे तो फिर यू विल नॉट हैव quality relationships in your life. Okay, so don't become judgmental, keep it to that person only and move on. Okay, so that was about today's class, in short, very compact way of including 2 classes on honesty and trust, both because both are actually parallel in a way, कि अगर कोई बंदा ऑनेस्ट है तो हम उस पर ट्रस्ट कर पाएंगे। और बहुत बार ऐसे होता है कि जैसे मैंने बोला, ट्रस्ट इज द बिगेस्ट फैक्टर जो डिफरेंशिएट करता है बहुत जगह हम उन लोग के साथ ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे जो ट्रस्टवर्दी रहते हैं। तो इसलिए हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा पॉइंट क्या है कि हम हो सके जितना ट्रस्टवर्दी बने, हो सके जितना हम ऑनेस्ट बने, जहां भी
अननेसेसरी चीजें हैं उन चीजों को हम दूर करें, then you see how simple you can live. Don't have to complicate things here. Okay. And I just want to add one more point. You saw here how people were um, like not giving you permissions to go to movies. They were making fun of you if you're struggling, or even in society in general, is very punishing because everybody else is getting away with saying lies. सब लोग तो झूठ बोल के काम निकाल रहे हैं, आप सच बोल रहे हो, तो इस एनवायरनमेंट में कितना मुश्किल होता है किसी को ऑनेस्ट रहना. So when you grow up, when you are growing up, make sure you don't make the same mistake. Okay, because if we keep doing the same mistakes, our next generation will also feel the same thing. They will also lie to us, they will also be dishonest to us, because now we are not giving them the same space. Okay, so that is what I want to conclude with. So let me see the time. Okay, I can't see the time. All right, guys, 11:50, perfect. I think we did well today. So summary, right? Who wants to volunteer for the summary? कोई volunteer कर रहा है? Bhaiya, shall I share a small story that happened recently, 3 or 4 months back? Sure. Okay, so my uncle's very close friend, like very, very. So he borrowed money from literally 40 people in Barshi, and all were of अपने जैन समाज के ही थे. तो अच्छा. कुछ 40-50 थे, and this 40-50 को पता नहीं था कि मतलब ये in this 40 people also didn't know that he's borrowing from everyone. So 3 or 4 months back, I think in March or April, the person ran away and without giving the money, and then his wife lodged a complaint in the police station that everyone is harassing him to give the money back, and the money amount was not very small. It's like every amount was about 10 lakhs or something, and no one knows what he has done with the money. But now the money back, he came back, the case is solved. I don't know what happened later on, but now the whole people, all the people in Jain Samaj are now like, no one is with him, no one is talking with him, that he has lost all the trust, like everything is lost. And अपने जैन समाज का ही था, तो बहुत ज्यादा बदनामी हो गई है. तो वो वही मेरे को आपने 10 लाख का बताया ना, so I got recalled that personal connection. Got it. Okay, so what is your conclusion on this, Shruti? So I would conclude that for trust is very important. It's very important to maintain our relationships, and for trust, the basic thing is truth. So being truthful, being honest, and not to creep in us. Yeah, trust is needed, and yes. Got it. Okay. All right. So that was the story. Would you like to summarize, or that's your summary also? Yeah, that's my summary also. Okay. Wonderful. All right. Let me see how Tanmay summarizes, because he's feeling a bit left out, I think. Tanmay, you are here? Hello, am I audible? Yes, we can hear you. So what summary according to me of this lecture is that for our relationship, trust is the main block that keeps it together. So we need to have a high level of trust among our peers to have a healthy relationship. Secondly, to make that trust on ourselves, we should be honest and straightforward. Bit tough to have uh, to be honest all the time, but we should try to be honest most of the time. There may be situation where you are requested to lie, like you mentioned कि मतलब एक कुछ कांड हो गया और जब पूछाई हो रही है तो क्या बताएं. तो ये है और तो ये है और अपन को बोलने की आदत हो जाती है कि हम ये चीजें जानते हैं, इतने अच्छे से नहीं जानते लेकिन हम बोलते हैं कि हमें आता है.
ये मतलब हर बार होता है, तो ये कम करना पड़ेगा कि हम अपने आप के ट्रस्टवर्दी और लोगों को अच्छा दिखा पाए। That's all. Got it. Okay, very well summarized. One quick point I want to add in this is I actually realized here यहाँ पे जब हम देखते हैं कि ऑनेस्टी को बहुत हाई वैल्यू देते हैं, यहाँ पे जो है वो बोलते हैं, जो पता है उतना ही बोलेंगे, इतना पता है, राइट। और यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल आपने दिया कि कुछ कांड हो गया बट अब उसको कैसे बोले तो हम छुपाते हैं, बट यहाँ पे इट इज सरप्राइजिंग बट यहाँ पे जो है वो बोलते हैं because of the setup here, जैसे society cannot interfere, they cannot judge you, they cannot say anything to you, so you are so much more free. So अगर कुछ गलती हो गई तो भी वो एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है ये हो गया, और उस टाइम गलती नहीं, उस टाइम ऐसे हो सकता है फन के लिए कुछ किया हो, कुछ मजे टाइम पास के लिए किया हो, बंक किया हो, ऐसे बहुत मस्ती करते ही हैं, तो इट्स ओके, वो ओपनली बोलते हैं कि मैं अभी बंक किया या मैं अभी मस्ती किया हूँ या ये किया हूँ, because the society is more understanding of them or they are not so judging. So person क्या है, उसको कॉन्फिडेंस मिलता है, और कितने बार करेगा वो, अगर वो सच बोल रहा है तो उसको 3-4 बार करेगा और फिर उसको समझा सकते हैं कि ऐसा मत करो, वो नहीं समझा तो अब उसके ऊपर है, then he has lost direction, but that is a separate scenario. But the point is if somebody सच, अब अगर कोई सच बोल रहा है एंड यू नो वो सच बोल रहा है, उसके साथ डील करना इजी है। क्यों? क्योंकि अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो कोई बोल सकता है कि भाई ऐसा नहीं, ऐसे ऐसे करो, बट कोई अगर सच बोल ही नहीं रहा है तो फिर हमको तो लग रहा है वो कुछ और है, लेकिन रियलिटी में वो कुछ और है, फिर ऐसे अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती है, दूरियां बढ़ती है, और फिर भी एट वन पॉइंट ऐसा लगता है वो समझ में नहीं आ रहा है कौन है क्या है। ओके, सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट गुड पॉइंट देयर। All right, I think today we have to stop at sharp 12 today. I think we did well. Unless anybody wants to add something, does somebody wants to add any point? It's Smith. I just have one point. It's like Sure. being dishonest is not just about being dishonest with others. You are indirectly being dishonest with yourself. If you're cheating somebody, it's not that that person is cribbing about it, crying about it, but in turn you are also crying or you are also not happy about it. Correct. So in a way, you are cheating yourself. You're not cheating the other person. You're cheating yourself, and you're spoiling your karma. Very good. So this is a very crucial point, guys. Why? Because the person who is cheating, they don't feel this way. If they would have felt this way, they would have never cheated. Let's say not never, but 99% of the time they would have not cheated. But that person who is cheating, they don't feel that way. They are thinking they are doing something smart, they are doing something very cunning, and they are doing something in the longer run, which it's like a single shot jackpot कि मैंने एक साथ 30-40 लोग को बेवकूफ बना दिया, मेरे पास 4-5 करोड़ आ गए, I don't have to work whole my life. So is it worth working for 30 years, or is it worth just making 30 people fool in a month or a year and then take that money away, right? Both in both the cases the person is making choice, but when he or she is making choice, they are not at all thinking like that. So that's why I said they don't understand the law of karma. It's not that they are fooling themselves, they are doing something which they don't want to do. They want to do it, they want to cheat people, they want the money, that's why they're doing it. But the point is that time they will not realize, maybe the full life they will enjoy, maybe they'll have different set of problems, that is irrelevant. The main point is at some point in current life or in future lives, whenever at some point they have to pay back many times for that. Why? Because like I said, law of karma will catch up. So you get what you give. So if you give out all cheating to others, you will be cheated somehow in return. Okay, that is just the law. That is not something I am saying, somebody else is saying. It happens. Just that person in that moment, they don't feel like that.
They will feel my goal is to make quick money, 4-5 crores in 1 month. I am making the money. I am actually achieving my goal. I am actually doing what is right for me. That's how that persons will feel. That's why it's irrelevant to debate with them on conscience, debate with them on such things, because they don't want that way. They feel you keep your trust, you keep your conscience. I want money, I got the money, right? I'm saying we as a general people, we shouldn't think like that, or we should think it in a proper way. But that's a very, very good point. It's a very, very valid point in a large context. How in reality when we cheat others, we are somewhere sown the seeds. कहीं ना कहीं हमने बीज बो दिए हैं जो कि रेडी रहेंगे कभी ना कभी, जहाँ पे दूसरे लोग हमें चीट करेंगे या हमें उसका फल देना पड़ेगा. जैसे श्रुति ने एग्जांपल दिया कि जब चीट कर रहा था तब उसने ये नहीं सोचा अरे भाई पकड़ा जाऊंगा तो क्या होगा, कितना मतलब मुश्किल होगा, बट पकड़े गए अनफॉर्चुनेटली. और जब आ गए तो अभी उनको हर दिन वो रियलाइज होगा, या फिर रियलाइज नहीं होगा तो भी बाकी सब लोगों से टोटल आइसोलेशन. सो इट्स लाइक इट्स नॉट वर्थ इट. ओके. Hey, Namita, you asked a couple of questions. So sorry, I just saw it. I'll just quickly answer that. Why can't we trust anyone with power? Why can't we trust? Of course, we can trust. We cannot trust everyone with power, but we can trust someone with power. It's not that people who are powerful are by default not trustworthy. Okay. So let's say in politics also, there are many people who are not at all trustworthy, but there are also few people who are absolutely trustworthy. बिकॉज इन रियलिटी अगर आप किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं या कोई भी ट्रस्टवर्दी नहीं है, विच मीन्स अपने सही से समझ नहीं रहे हो. क्योंकि लोग तो हैं, सब तरह के लोग हैं, ट्रस्टवर्दी लोग भी है, नॉन ट्रस्टवर्दी लोग भी है, न्यूट्रल लोग भी है, कुछ 80-20 वाले लोग भी है, सब तरह के लोग है. ओके, इट्स जस्ट दैट उस तरह से आपको कॉन्टेक्ट मिला है नहीं, या डू यू रियली रिलेट टू इट लाइक दैट और नॉट. सो वी कैन एब्सोल्युटली ट्रस्ट विद पावर. And when we share things with someone, we are in risk judgment. How do we come to trust others? So can you expand this question, Namita? I didn't get your question. Yeah. See, means like you told now, we have to means we have to trust. We have to trust. So that time we are in risk, right? Whether they'll break it or not. So how should we? Means how should we build that? What a question. If I know answer for that question in life, I never anybody can break that trust. That's a very deep question. There is no way to answer like on a surface कि एक उसका आंसर ही नहीं है. बहुत ही डीप क्वेश्चन है ये कि लाइफ में सिनेरियो है कि कैसे मैं पता करूं ट्रस्ट करूं नहीं करूं. So like I said, if people who exhibit this behavior, for example, they will say the truth most of the times. If they don't know something, they will admit it. If they are wrong, they will say, yes, I am wrong. Or if they do something which they are not supposed to, they'll explain why they did it. Or they also trust you, not just you trust them, they also trust you, and you can feel that trust. अगर ऐसे तरह के लोग मिल रहे हैं, that means we can have reasonable amount of trust. हम उस पर भरोसा कर सकते हैं कि, और टाइम भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है. ऐसे नहीं कि 1 महीने में सब हो गया, टाइम लगेगा, 6 महीने में, 1 साल में. विद टाइम यू बिल्ड मोर एंड मोर ट्रस्ट बिकॉज यू नो दैट पर्सन मोर एंड मोर. इस लेवल पे अगर कोई पहुंच गया कि जहाँ पे हमें भरोसा है, देन यू build the trust. Now if that kind of person cheats you, that's what I'm saying, if that kind of person also can cheat you, but then that is not your mistake, because you have done your proper evaluation. You have आपने स्मार्टली देखा कि उसको ट्रस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए. ऐसे नहीं कि कोई पहले दिन ही आ गया, आपने सब उस पर बिना टेस्ट किए डायरेक्टली उस पर ट्रस्ट कर दिया और डायरेक्टली उसको मतलब अपना बेस्ट फ्रेंड बना दिया, एंड देन बाद में पता चला कि वो तो एक्चुअली आपका बेस्ट फ्रेंड है ही नहीं, उसका तो पर्पस ही कुछ और था. ओके, so that is how in general we can evaluate. But there are exceptions, always there are exceptions. There are people whom at first time we see, we feel very trustworthy, we feel very we feel like trusting them. And there are some people whom जहाँ हम सालों साल रह के भी हम इतना ट्रस्ट नहीं कर पाते. Okay, so there are exceptions, but in general this is a base template कि आप कैसे किसी को जज करोगे कि उस पर भरोसा करना चाहिए या नहीं. बट सवाल तो बहुत मुश्किल है, ऐसा कोई आंसर तो है नहीं उसका, लाइक परफेक्ट आंसर तो मेरे को तो पता नहीं है उसका. Okay, all right guys, so
let's meet tomorrow then. A very special session tomorrow, Power of Youth. It's an added session. I didn't want to do it before, but we are actually winding up our personality development, our mindset modules tomorrow. Tomorrow is the last class on all of this. So, which I wanted to end with the Power of Youth, and it's very, very special class tomorrow. So, with this, we'll finish our 2 modules. Okay. So next week we will go to communication modules.